Okay, guys, we'll start it. क्या क्या कवर कर लिया था? What we all covered? जल्दी बताओ. Coordinate geometry, last chapter. What we covered? Locus. Very good. क्या होता है locus भाई? What is locus? How do we define locus? We covered locus in the last class. A path of a moving point. Very good. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने लोकस की डेफिनेशन देखी, देन इक्वेशन ऑफ लोकस भी देखी. क्या स्टेप्स इन्वॉल्व थे? व्हाट आर ऑल स्टेप्स इन्वॉल्व इन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द लोकस? कैसे करते हैं फाइंड? व्हिच ऑल स्टेप्स वर इन्वॉल्व्ड? जल्दी जल्दी बोलो. कैसे फाइंड करते थे? कहां से स्टार्ट होता था? First we take the point to be h comma k. H comma k, then उसके बाद distance formula we find. Then from that we find the first they might give the ratio, like for example 2 pa equals to 3 pb something. So with that distance we'll combine it with distance formula and find out the equation. Very good. So is it necessary that the condition would be in the distance form, or the condition could be in any form? So distance should be constant. You know, the condition that I have given, correct? Now you are saying 2 pa is equals to 3 pb. So is it necessary that the distance condition would be in this form? Condition could be given in any other form also? Yes sir, it could be square, it could be root. वेरी गुड, करेक्ट ना. चलो ये तो समझ में आया आपको. तो अभी मेरा आपसे क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसी में थोड़ा कंटिन्यूअस है ना. कोई एक पॉइंट है x1, y1, ठीक है ना. ये पॉइंट आपको एक दूसरे पॉइंट का लोकस फाइंड करना है ना. फाइंड द लोकस ऑफ अनदर पॉइंट which moves in such a way. Find the locus of another point which moves in such a way that its slope from, let's say this point is A, from point A is always constant. From point A is always constant and equal to, let's say, some English letter M. करो जरा. Sir, find the locus means the equation, right? Yeah. Sir, what does it mean, slope from that point? That means that its angle with that point, or the line which joins them is at a slope.
No, you have to focus on the condition, definition of slope. I have explained in the last class now what is the meaning of slope and angle of inclination. You should not get confused between these two. Angle of inclination and the meaning of slope and gradient. ये मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को, करेक्ट? If this is theta, then the tan of theta is slope or gradient. Hmm. नो, रॉन्ग है, अच्छे से अप्लाई करो डेफिनेशन. तो स्टेप वन क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, व्हाट वुड बी द स्टेप वन? First we take h comma k, then slope is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. ठीक है, स्टेप टू वुड बी स्लोप. किससे निकालना है? पॉइंट ए से. तो स्लोप ऑफ एपी वुड बी व्हाट? X k minus, no, minus k minus. y1 h minus x1. Sir, isn't it y2 minus y1 upon x2 minus x1? तो हाँ, Y coordinates. हाँ, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, माइनस कॉमन निकाल लो ना. Okay. इफ यू टेक माइनस कॉमन दोनों साइड से तो वही हो जाएगा, वो डजंट मैटर whether you write it like this. It means y1 minus y2 x1 minus x2, or write like this, y2 minus y1 x2 minus x1. Both are same. These two are same, guys. माइनस कॉमन लिया, कुछ नहीं किया, ठीक है? दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? m. ठीक है? सो स्टेप 3. Sir, I think I got it. So I'm sorry. step 3 is what? H you have to replace it with what? X, and k you need to replace it with y. So what would be the equation then? Y minus y1 x minus x1 is equals to m. That is the answer, guys. That is the equation of the line passing through the point this and having a slope m. समझ में आया? क्या मिल गया आपको? You got a equation of a line which passes through which point? x1 comma y1, and whose slope is what? m. समझ में आया कि नहीं आया? चलो, वेरी गुड. अभी नेक्स्ट है, ध्यान से समझना गाइस. आप लोगों को ये पता है क्या इंटरसेप्ट क्या होता है?
Sir, x-intercept, y-intercept. हाँ, क्या होता है? व्हाट इज एक्स Sir, इंटरसेप्ट? x-intercept is the हाँ, if एक और चीज, एक मिनट से पहले रोक रहा हूँ। लास्ट हमने जो क्वेश्चन किया था, हमको उसमें इक्वेशन ऑफ लोकस मिला था ना? क्या मिला था? ये मिला था, y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू m। करेक्ट ना? इसमें m कांस्टेंट था ना? करेक्ट। तो इसमें जो शेप आएगा लोकस का, वो क्या आता है? व्हाट इज द शेप? हाँ, स्ट्रेट लाइन। क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। तभी तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन बनी है। समझ में आया नहीं आया? तो अभी क्वेश्चन था कि व्हाट इज इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? फुल टेल मी। sir, x-intercept when the points are x is on the x-axis and y is on y-axis. The distance of x from origin is x-intercept and distance of y from origin is y-intercept. हाँ, तो देखो ध्यान से बेटा, इसमें ये है कि एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन होता है। क्या होता है? ऑफ अ लाइन। वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। तो कोई एक रैंडम लाइन बना दो। सपोज करो मैंने एक रैंडम लाइन बना दी कोई, ये ऐसी। तो ये जो एक्स एक्सिस पे जहां पे उसने कट किया, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है। अच्छा, व्हाट वुड बी वाई इंटरसेप्ट देन? वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? ये। करेक्ट ना? दिस वुड बी वाई इंटरसेप्ट, इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस, दैट वुड बी वाई इंटरसेप्ट। ये समझ में आया? इज द डेफिनेशन ऑफ एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट क्लियर? अच्छा, एक चीज बताओ मेरे को। लेट्स सपोज ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट हमारा ए है। ए का कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा और बी का कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा? जल्दी बताओ। कैन आई से दैट ए का वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा और बी का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा? कैन आई से दिस? क्योंकि ए इज लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस and B is lying on the y-axis. Can I say this or not? अच्छा, तो अभी ध्यान से देखना, आपको नेक्स्ट बताना है। देखना, फाइंड द इक्वेशन। अगेन सेम क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस of a point na which moves in such a way that its slope from point 0 comma c is always constant and equal to
m. करो जरा. Sir, it is 0C, right? 0, c. Yeah. Can you simplify it further? Correct, Shiv? गुड है ना. उसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो क्या? कैन यू सिंप्लीफाई इट फर्दर? You all are saying this now. Y minus c equals to x is equals to m. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? Y equal to mx plus c. So this is the equation of the line, correct ना? Which passes through 0, c and have the slope of m. ये इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, जिसका y इंटरसेप्ट कितना है? c. और इसका स्लोप कितना है? m. तो आपके बाद मैं आपको बोलूं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, who have let's say y slope of 2 and y intercept of 2 and slope 3. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y equals to 3x plus 2. डायरेक्ट लिखोगे, ये सब बार बार आपको करने का नीड नहीं है. तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? What are all we trying to do? We are trying to find the various equation of the line. और आप देख रहे हो सारी इक्वेशंस जो हैं, दे आर द इक्वेशन ऑफ लोकस और नॉट. अभी तक हमने 2 इक्वेशन देखे हैं. कौन कौन से देख लिए हमने? We are basically trying to find various equation of line. पहला इक्वेशन कौन सा देखा हमने? ये वाला, y minus y1 x minus x1 is equals to m, है ना? This is called as what? वन पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म. इसको क्या बोलते हैं? वन पॉइंट. कौन सा पॉइंट है बेटा? x1, y1 एंड स्लोप फॉर्म. स्लोप दिया है ना, m. दैट्स वाई. सेकेंड फॉर्म हमने पढ़ा ये वाला, y equals to mx plus c. This is called as what? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप m गिवन है और कौन सा इंटरसेप्ट गिवन है? y. दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना? ऐसे बहुत सारे फॉर्म हम ड्राइव कर रहे हैं और उनको फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, करेक्ट ना? अभी तीसरा आपको फाइंड करना है, कंडीशन है वही सेम, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस. क्या कंडीशन है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस of a point
of a point which moves in such a way such that the In the distance. first equation, isn't it y minus y1 upon x minus x1? हाँ माइनस ही तो है. जो Find the equation of the locus of a point which moves in such a way that its slope from 2 points, let's say point A, x1 comma y1, and B, x2 comma y2, is always constant. चलो बताओ. sir, can we take both as m or one as m and n? You can take what? M is not given. That No, is the sir. condition is given. We take slope as that. No? Slope, apply the definition. Sorry. Correct. Can I take y minus y2? Save. You have taken y minus y1. Can I take y minus y2? Very good. तो कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी, कैसे करते हैं क्वेश्चंस, क्या जूम करेंगे, जल्दी बताओ. Let the point be h comma k. Very good. फिर ये स्टेप 1 हो गया. स्टेप 2 विल बी अप्लाई द कंडीशंस, है ना. तो आपको निकालना है स्लोप ऑफ पी ए would be equals to slope of PB would be equals to slope of AB. Can you find the slope of PA? Yes. Now it would be what? H minus y1 upon, sorry, k minus y1 upon
h minus x1 equals to h minus y2 equals to h minus x2 y2 minus y1 x2 minus x1. Fine. You can choose anyone. कोई भी एक चूज कर लो. सपोज करो मैंने ये वाला चूज किया. What would be step 3 then? Replace k with y and h with x. So the equation would be y minus y2 x minus x2 would be equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. This form is known as the 2-point form. इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? तो मैंने लिखा है ना, थर्ड वन is 2-point form. Correct? So let me erase it and write it again. थर्ड हमको जो फॉर्म मिला है इक्वेशन ऑफ लाइन का, y minus y2 x minus x2 is equals to y2 minus y1 x2 minus x1. This is known as the 2-point form. कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं? We have been given the point x1 y1 right and x2 y. That's why it is called 2-point form. ठीक है. अच्छा, अभी इसके बाद अगेन फोर्थ पॉइंट, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. फोर्थ वाला कौन सा हो जाएगा? डबल इंटरसेप्ट. ठीक है. वो ऐसा होता है, कंडीशन उसके आप खुद सोच सकते हो. अभी मैं लिख देता हूं क्वेश्चन. x upon a plus y upon b is equals to 1. This is known as the double intercept form. Double intercept form है ना. डबल मतलब दो, मतलब आपको दो इंटरसेप्ट दिए जाएंगे. You will be given x intercept, you will be given y intercept. तो x इंटरसेप्ट क्या होगा? a, y इंटरसेप्ट क्या होगा? b. ठीक है. तो क्वेश्चन इसमें ऐसा बनेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which moves in such a way, equation of a point which moves in such a way such that it moves its slope from the point a comma 0 and 0 comma b is always constant. ना, its slope from the point a comma 0 and 0 comma b is always constant. तो ये आएगा. ठीक है. अच्छा, another form is ये वाला, x cos theta plus y sin theta is, let me, theta तो हम यूज कर लिए हैं, तो I'll use a different letter that you don't get confused. So let me use a different letter. So it is basically x cos alpha plus y sin alpha is equals to p. This is known as the perpendicular form. Perpendicular form. ठीक है. And the last one, sixth parametric form, correct now, x minus x1 upon cos theta is equals to y minus y1 upon sin theta.
ठीक है, where this is known as the parametric form. सबका मैं डायग्राम बना देता हूं so that the picture becomes very clear. ध्यान से देखना. Let me make the diagram also. इसका डायग्राम बनाऊंगा ना बेटा तो ऐसा आता है. ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये मेरी लाइन है, ठीक है. ओरिजिन से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला. फ्रॉम ओरिजिन आई सबटेंडेड अ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन 90 डिग्री. तो इसकी जो लेंथ है P है ना, ये P. और ये जो एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये वाला एंगल, करेक्ट ना. ये जो एंगल बनाता है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, छोटा वाला है ना, दिस इज नोन एज द अल्फा. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम है. दिस इज द डायग्राम फॉर क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम कैसा हो जाएगा गाइस? क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम ये हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस. ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये डबल इंटरसेप्ट. ठीक है, तो जो नीचे वाला इंटरसेप्ट है ये वाला, दिस इज ए एंड दिस इज बी. ठीक है, सो दिस इज डायग्राम फॉर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 2 का तो आपको सिंपल 2 पॉइंट दिए हुए हैं ये. ठीक है, और एक पॉइंट मूव हो रहा है रेड कलर का. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. वो मूव हो रहा है सच दैट उसका स्लोप जो है वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है. दिस इज द डायग्राम फॉर क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, व्हाट विल डायग्राम फॉर क्वेश्चन नंबर 4? सॉरी, इक्वेशन नंबर दिस. ये तो और इजी है. ऐसा है, ये गिवन है. कितना गिवन है? ये वाला सी दिया है बेटा. इट मीन इसका कोऑर्डिनेट 0, C है. दिस इज फॉर दिस. समझा क्या? और होल फॉर्म क्लियर? डाउट है किसी में? 6 के 6 फॉर्म क्लियर है? पैरामेट्रिक फॉर्म कोई भी लोग कुछ बना दो, है ना. नॉर्मल लाइन बना दो. लास्ट टाइम कवर किया था ना पैरामेट्रिक. ये लाइन है, ये ऐसा नॉर्मल. थीटा कांस्टेंट है. Yes, alpha is to the perpendicular line. Alpha is not for the line, है ना. Very good. अल्फा जो है वो टेक केयर रखना है. अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल मेड बाय द पी. ये ग्रीन लाइन जो बना रही है, इट इज नॉट द एंगल मेड बाय द लाइन. लाइन जो एंगल बना रही है वो नहीं, परपेंडिकुलर जो एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. समझ में आया? क्वेश्चंस करें इस पे. We practice questions on this, all 5 forms, 6 forms rather. चलो do the sums now. अभी sums करेंगे इस पे.
क्या आंसर आ रहा है भाई? क्या आंसर आ रहा है? ठीक है, कौन सा फॉर्म करना है बेसिकली? डबल पॉइंट फॉर्म लगा सकते हो। कैन यू यूज द डबल पॉइंट फॉर्म या 2 पॉइंट फॉर्म? क्या होता है? y माइनस y1 x माइनस x1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये x1 y1 x2 y2 डालो ये वैल्यू। y2 6 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 5। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? y माइनस 4 x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जरा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? -5y प्लस 20 इक्वल्स टू ट्वाइस x माइनस 4। हमको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इट वुड बी -5y और ये हो जाएगा ट्वाइस x माइनस 20 माइनस तो -24। अभी यहाँ 5 है, यहाँ तो 1 है, तो इसको 5 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा? y माइनस 2/5x प्लस 24/y। इसको कंपेयर करो अभी। सो व्हेन यू कंपेयर इट तो आपको m क्या मिलेगा जल्दी बताओ? कंपेयर विथ दिस y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये तो x है, तो ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा c। सो व्हाट वुड बी m देन? व्हाट वुड बी c? समझा क्या? अंडरस्टूड?
करेक्ट है। बाकी बच्चे यस। हाँ भाई, बाकी बच्चे सो रहे हो क्या? क्या आंसर आएगा? जल्दी बोलो। इससे कंपेयर कर दूं क्या? कैन आई कंपेयर इट? बट एक प्रॉब्लम है, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो क्या करें? बताओ जल्दी क्या करें? यहाँ 3 है ना और यहाँ 1 है, क्या करें? 3 से डिवाइड कर दे तो कितना आएगा? वाई। अभी सही है? अभी कंपेयर कर लो। अभी यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो m कितना आ जाएगा? m क्या होता है? व्हाट इज m? समझा? समझ में आया क्या? चलो अभी जल्दी जल्दी से मेरे को कंडीशन ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर बताओ। लास्ट क्लास में कवर करी थी ना हमने। दो लाइन है m1 और m2 स्लोप वाली, परपेंडिकुलर कब बोलते हैं और पैरेलल कब बोलते हैं? They will be called perpendicular when, yes.
सी के फॉर्म में थोड़ा आएगा, सी नहीं आएगा बेटा। नहीं, कैलकुलेशन चेक करो। इवान रॉन्ग है, कैलकुलेशन चेक करो रे सभी, करो। आई गिव यू 5 minutes। हम्म।
हाँ, ये तो इजी था पहला वाला। पहला वाला क्यों नहीं आया भाई? इसमें क्या प्रॉब्लम है? राइट एंगल मतलब ये दो पॉइंट हैं 1,1 और 3,5। राइट मतलब परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर मतलब कौन सा रेशो? 1:1 का। कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस? क्या आएगा जल्दी बताओ, क्या आएंगे कोऑर्डिनेट? Let's say this is point A. Tell me the coordinate of point A. जल्दी बोलो। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, अरे 1:1 रेशियो सो गए क्या सभी? अर्पिता, भाग्यश्री, इवान, प्रदन्या, सुभाषिनी, सेव, राधिका, सभी सो रहे हो क्या? कुछ पूछ रहा हूं मैं। ए के कोऑर्डिनेट We can find it through midpoint formula, sir. It will be 4/2, 6/2. So 2,3. ठीक है, तो अभी 2,3 हो गया। तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए जो 2,3 से पास होगी और इसके क्या होगी? परपेंडिकुलर। यही मतलब है स्टेटमेंट का। So ठीक sir, है, x will be 2, y will be 3, x1 1, 1 and y1 1, and x2 and y2 will be 3 and 5. ये x1 y1 हो गया। अभी स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे Sir, निकालोगे? m1 sir, into m2 is equals to, sir, won't 2,3 be x, y? no, it would be 2,3 would be x होता है। ठीक है, तो इसका स्लोप हो जाएगा, सपोज करो m1, इसका स्लोप है m2। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन है? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। जल्दी से m1 की वैल्यू बताओ कितनी है? 2। कैसे निकाला? 5 - 1 डिवाइडेड बाय 3 - 1, तो 4.2 दैट इज 2। तो ये 2, लेट सपोज करो m2 जो वो m है इक्वल्स टू -1, तो m कितना आ गया? -12। कैन यू यूज दी स्लोप फॉर्म इक्वेशन का? क्या होता है जल्दी बताओ, व्हाट इज द स्लोप फॉर्म? ये होता है, तो कैन आई अप्लाई y - 3 x - 2 इक्वल्स टू -2। इसको रीअरेंज करोगे तो ये ही आंसर आएगा। समझ में आया? सो रहे लगता सारे बच्चे। Sir, can't we do with the old formula? कौन सा फॉर्मूला? Sir, that it was x2 by2 minus y1 upon x2 minus x1 equals to दो y. पॉइंट कहाँ है आपके पास? आपके पास 2 पॉइंट है क्या? आर यू हैविंग 2 पॉइंट? No, 3. हाँ, 3. 2 पॉइंट है क्या आपके पास?
2 पॉइंट्स हैं, आपको इसका इक्वेशन फाइंड करना है। ये इसके लिए 2 पॉइंट हैं आपके पास क्या? नहीं है। तो फिर कैसे यूज करोगे बताओ? नो, नॉट नेसेसरी। इस फॉर्म में भी छोड़ोगे तो एक्सेप्टेबल है, बट ऑप्शन जिस फॉर्म में दिया रहेगा उस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। चलो, तो नेक्स्ट है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना आप। नेक्स्ट टॉपिक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a point x1 comma y1 from a line. Let's say line is ax plus by plus c is equals to 0. तो क्वेश्चन ये है गाइस, ध्यान से देखना कि ये आपकी एक लाइन है। ठीक है, क्या लाइन है? इसका इक्वेशन पता है? हाँ, इसका इक्वेशन ये है ax plus by plus c equals to 0। अच्छा, इस पे यदि कोई पॉइंट है तो उसकी डिस्टेंस लाइन से कितनी होगी? सपोज करो एक पॉइंट ये है ए और एक दूसरा पॉइंट है बी। सो व्हाट वुड बी द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द लाइन? क्या होगा? जीरो। वेरी गुड, हमको इसमें इंटरेस्ट है। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग बी सी, है ना? आपको किसमें इंटरेस्ट है? आपको बी के कोऑर्डिनेट पता है। लेट्स से दिस इज बी x1 y1। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं बताओ? हाउ कैन वी फाइंड? हाँ, जल्दी बताओ। इसका स्लोप क्या होगा? इस पे कोई पॉइंट अज्यूम कर लो, लेट्स से h कॉमा के। क्या होगा जल्दी बताओ? m1 की वैल्यू बता दो मेरे को बस। m2
कंपेयर करके ax प्लस by प्लस c, तो किससे कंपेयर करोगे? y इक्वल टू mx प्लस c से करो कंपेयर, क्या आता है? हाँ, रीअरेंज करो, क्या आएगा? फाइनल आंसर ये आना चाहिए। ये BC का वैल्यू आएगा मॉड में। सोचो अभी कैसे आएगा, मैंने इतना हेल्प कर दिया आप लोगों का। K1Y1 कैसे हो जाएगा बेटा? उनको सॉल्व कर लो। कैन यू सॉल्व दीज टू साइमल्टेनियसली? हाँ, फॉर H and K।
है ना, ये एच है, ये के है. इफ यू सॉल्व देम फॉर करेक्ट ना, तो आपको फाइनली ये मिल जाएगा. K1 कोई पॉइंट है ही नहीं, वो तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है. x1 y1 क्या है, हमारा पॉइंट है जिससे हमको इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो इस पॉइंट को इस लाइन में डाल दो, ठीक है, और अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर दो. दैट्स इट. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, लेट्स से दिस इज द लाइन 2x plus 3y equals to 5. मैं बोलूं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लेट्स से 1,0 फ्रॉम दिस. तो कैसे करोगे, सब्स्टिट्यूट दिस पॉइंट इन दिस. तो क्या आएगा, 3 into 1, 2 into 0 minus 5, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट और होल मॉड. ये तो 0, 3 minus 5 तो 2 डिवाइडेड बाय √13. दैट इज द आंसर. समझ में आया क्या फॉर्मूला कैसे यूज करना है? Did you guys understood that how the formula need to be used? इस पे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है. ओके, you need to find the perpendicular distance of following points A, from करो, ठीक है. टोटल 4 पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालनी है परपेंडिकुलर इस लाइन की. चलो, आई गिव यू 5 मिनट, करो. Sir, could you tell that 4-point formula again? I forgot to. Sir.
चलो, तो पहला वाला पॉइंट जो है ए, ये पॉइंट डालोगे तो क्या आएगा, 2 + 2 - 4 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का मॉड, तो ये 0 आता है। पॉइंट बी का क्या आएगा, इसको इसमें डालोगे तो इट वुड बी 4 + 1 - 4 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 1, so it would be 1/√5। सी को क्या आएगा, इट वुड बी मॉड ऑफ, इसको डालोगे तो इट वुड बी 2 + 3 - 4 डिवाइडेड बाय √5, which simplifies into 1/√5। लास्ट वाला डी, -1 डालोगे तो -2 + 3 - 4 डिवाइडेड बाय √5, which simplifies into 3/√5। समझा क्या? अच्छा, अभी लास्ट पार्ट है इसी का क्वेश्चन का कि इमेज कैसे निकालते हैं, है ना। इमेज क्या होती है वैसे, पहले ये बताओ। कोई भी पॉइंट की आपको लाइन में इमेज निकालनी है, ठीक है। यू नीड टू फाइंड द इमेज। ध्यान से देखना, आई विल राइट इट। कोई पॉइंट है x1, y1, इसकी आपको ये लाइन ax + by + c = 0 में इमेज निकालनी है। तो सपोज करो इमेज जो है बेटा वो xi, yi है ना। I इज फॉर इमेज, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, x - xi अपॉन a, y - yi अपॉन b माइनस 2 into ax1 plus by1 plus c divided by a square plus b square. This is the formula that you should remember. समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल यही वाला इक्वेशन था हमारा, इसमें लाइन की इक्वेशन क्या थी, 2x + y = 4, ठीक है। यही वाले क्वेश्चन में मैं बोलूँ फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी की इमेज फाइंड करनी है ना मेरे को। सो दिस वुड बी x1, दिस वुड बी y1 एंड दिस वुड बी a, दिस वुड बी b और ये c। तो लगाओ जरा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, x that is 2 minus xi divided by a. What is a? A is 2 is equals to y that is 1 minus yi divided by 1. This should be equals to -2। जरा डालो जरा पॉइंट को इसमें, तो क्या आएगा, 4 + 1 - 4 डिवाइडेड बाय 5। तो सॉल्व करो, 4 से 4 कट जाएगा, इट वुड बी -2/5। तो अभी ये वाला और ये वाला इक्वेशन सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, we got it 10 - 5xi is equals to -4, fine। So 5xi is equals to 14, so xi is equals to 14/5। Similarly you can find yi, है ना, तो it would be 1 - yi -2/5,
So yi would be 7 by 5. So what are the coordinates of image of b? B dash क्या हो जाएंगे? It would be 14 comma 14 by 5 divided by 7 by 5. Can we cut 5 from below? क्या? Can we remove 5 from the denominator by? No, फॉर्मूले में कहा? फॉर्मूले में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना. How can you remove it? No, no, sir. In the formula you have a square plus b square na, so how can you remove sir, 5? I was saying in the final answer when we get it, it is You coming. can divide it. You want to give the answer in terms of point, you can give it 2.8 and here it is 1.4. That's okay. B dash. है ना? अच्छा, इमेज क्या होती है? जल्दी बताओ, फिजिक्स पढ़ा है ना? सेव. इमेज क्या होती है? ये लाइन है, ये पॉइंट है. इमेज क्या होती है? Sir, the opposite on that other side. एक तो यहाँ ये परपेंडिकुलर होगा और दूसरा इक्वल होगा. ये डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस and second this would be perpendicular. So if this is b, this is b dash. This is the definition of image. Sir, can't we do this using distance formula also? हाँ, फॉर्मूला का डेरिवेशन जो है आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो. आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो, नो प्रॉब्लम. बट इससे आपको आंसर जल्दी आएगा. ठीक है, तो अभी आप मेरे को सी डैश और डी डैश निकाल के बताओ. चलो, फाइंड आउट द सी डैश एंड डी डैश. आई विल गिव यू 5 मिनट्स गाइस. क्या आंसर आए? जल्दी बताओ क्या आंसर आए.
Sir, for me, C dash is coming 9 by 5, comma 17 by 5. 19 by 5, 9 by 5 and 17 by 5. 9 by 5, comma 17 by 5. चलो, तो let us apply the C के लिए, C dash के लिए. So it would be 1 minus xi, as it is 1 here, upon 2, 3 minus yi divided by 1 minus 2. Substitute this point in this. कितना आएगा? ये आएगा 2 plus 3 minus 4 divided by 5. तो ये जाएगा 2 plus 3 5, 1, तो minus 2 by 5. अभी सॉल्व इट, तो ये क्या हो जाएगा? xi is equals to 1 minus या 1 plus 4 by 5, so 9 by 5. And Yes, sir. 3 It's mi- coming that. and yi would be 3 plus 2 by 5, 15, 17 by 5. Right? So the answer would be 9 by 5, comma 17 by 5. Yes, That sir. I is got the it. image of point C in the line 2x plus y. That is C dash. Understood? What about D dash? D dash कितना आया? D dash would be what? Minus 1 comma xi divided by 2, 3 comma yi divided by 1 is equals to minus 2. Minus 1 comma 3 रख दो. Minus 2 plus 3 minus 4 divided by 5. ये कितना हो जाएगा? Minus 6 minus 3, तो ये 6 by 5 आएगा. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा -1 minus xi is equals to 12 by 5. So xi बेटा यहाँ से कितना जाएगा? minus 17 by 5. Similarly yi कितना हो जाएगा? It would be 3 minus 6 by 5, so 9 by 5. तो आंसर would be D dash का -17,5 और 9 by 5. समझ में आया? तो आज क्या क्या सीखा हमने, बता दो जल्दी से, चलो, है ना? बिकॉज द कोऑर्डिनेट चैप्टर इज कंप्लीटेड. Sir, we did first we found the slopes and the inclinations and बेसिकली the ये किया ना, वेरियस इक्वेशन ऑफ लाइन, yes sir, different forms, two forms. डिफरेंट फॉर्म्स. फिर Sir, then we you found perpendicular distance of point, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देन image of a point. बस दैट्स इट. ये तीन ही कंसेप्ट हमने आज करे हैं. ठीक है, और इसके साथ ही योर कोऑर्डिनेट चैप्टर एंडेड. क्लास 10th में आपको हमारे अभी मॉड्यूल में इतना ही है ना? हाँ, बाकी शेर क्या डाउट है? C4 कहाँ 4 था? अच्छा हाँ, C-4 रहेगा बेटा. कैलकुलेशन फिर उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना. बेटा मैं तो पॉइंट डाल रहा हूँ ना सीधा सीधा. ax1 plus y1 plus c. लाइन क्या थी हमारी? 2x plus y is equals to 4. इसको यहाँ चेंज करो, ये हो जाएगा 2x plus y equals to -4,0. अच्छा पॉइंट डाल दो. पॉइंट क्या था? -1,3. सब्स्टिट्यूटेड, यही आएगा. ठीक है, चलो गाइस, तो मीट यू soon. Bye. Enough for today. Practice well. Take care. Bye guys.